is assessment of assessment of entrepreneurs. So here the first term is assessment. Assessment means what? To know, to measure, to know in details. Okay, to calculate. These all things. Assessment. Okay, but here next term is your entrepreneurial. Entrepreneurial term is coming from the term that is your entrepreneur. Okay, that entrepreneur term is referring to what? The term is referring to what? A person. A person. Okay, which type of person? Which have some such type of characteristics or such type of qualities और ट्रेड्स ऐसा गुण होना है, ठीक है, जिससे हम बोलेंगे कि ये एक एंटरप्रेन्योर है। अगर ये सब क्वालिटी, कुछ क्वालिटीज ऐसे हैं जो क्वालिटी किसी एक के पास रह गया तो उसको बोला जाएगा क्या? एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर जो भी बोल, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, कोई particularly it doesn't refer to a particular person, it refers to such person who have that qualities, and this entrepreneur is coming from the which word? Coming from which one? Interpret French verb. Entrepreneur, French word, that is your inter. Okay, so here that is your French word, and it means what? To undertake, to undertake. And this person, this entrepreneur is a person who undertake what? Risks in life. Which type of risk? Calculated risk. I think all of you are here are taking somewhat risks in your life, no doubt. Which type of risks? Now also you are studying, means you are taking a very big risk that whether this agriculture course, this BSc agriculture course will be helpful to make your career better. Okay, how many of you are sure about your future? Tell me that you will get sure or success in your life and you will get your job properly, definitely. Whatever you want, you will achieve that. Tell me, anyone who is sure? Sambit, are you sure about your future life? No, sir. Not sure? No, sir. Anyone? Biswajit? Biswajita? Biswajita? Sir. Biswajita, okay. Yes, sir. Tell. So don't depends on the fate. Anyone just tell me your aim, who are just started in that particular or to go in that particular one, or you have already started your journey to reach that particular goal of your life. Huh? Anyone? Anyone started the journey of struggle, full of struggle? Huh? Tell me. Rupak Lal. Tell. Yes, sir. Have you started your journey of life? No, sir.
No. So today you all decide at least what you want to be. At least you just decide what you want to be in your life, and accordingly you have to plan that one. Just like just here you can see that you have already invested how much money in your SAG? Around 10 lakhs. Around 10 lakhs. सबको मिला के सब चीज मिला के खाना पीना से लेकर सब चीज हॉस्टल हॉस्टल पढ़ाई वढ़ाई सब चीज हाँ around 10 lakhs already your parents have invested, and they think that what they will get definitely profit in the sense of your what your future secure future. They think that your parents think that my son or daughter has gone to this college, this university, and pursuing the degree of BSc Agriculture. Means definitely I can say after finish of his course or degree, he or she will get a job, and he or she can obviously secure his or her life. Am I correct or wrong? घर में तुम्हारे मम्मी पापा सोच के बैठे हैं कि मेरा बेटा या बेटी यहाँ पे जाके डेफिनेटली कुछ ना कुछ करके आएगा, उसका फ्यूचर सेट है। हाँ, वो कैलकुलेटेड रिस्क में चल रहे हैं, ना कि गैम्बलिंग खेले हैं कि मतलब कुछ भी इन्वेस्ट कर लिए, कुछ भी कर दिए और उसमें पैसा आएगा बोले। गैम्बलिंग में क्या होता है 50,000 हाँ 60 अगर लगाओगे तो कोई गारंटी नहीं रहता है, कोई प्लानिंग नहीं रहेगा, किस्मत के भरोसे रह जाओ। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई किस्मत के भरोसे नहीं है, कर्म करते चलो फल की आशा ऑब्वियसली आएगा, फल जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर कर्म अच्छे से करोगे। कर्म मतलब ये प्लानिंग, योर you have to make ensure that you have properly planned towards the journey of your life, towards the particular goal. So that is your calculated risk. अगर 5 रुपए भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आई विल नॉट बी इन लॉस इफ आई विल डू प्रॉपर प्लानिंग। अंडरस्टूड? रिस्क ले रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हेफाजत रिस्क ले रहे हो। कैसा वाला रिस्क ले रहे हो जिसमें तुम्हें फायदा है, और यू कैन से डेफिनेटली दैट आई विल गेट प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद देखो here to achieve that particular one, to achieve to be an entrepreneur, so many characteristics you should have. And what are the characteristics? What are those characteristics? What are those qualities? We'll do. So here first one is your high achievement motivation. ठीक है, फर्स्ट क्या है तुम्हारा हाई अचीवमेंट मोटिवेशन। मोटिवेटेड होना है क्या करने के लिए? अचीवमेंट, सफलता पाने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, सफलता पाने के लिए टू अचीव समथिंग, और ये हाईली मोटिवेटेड होना है। ठीक है, तुम लोग हाईली मोटिवेटेड जब हो जाओगे तब जाके बोल सकेंगे कि नहीं यू कैन अचीव दैट। जस्ट लाइक कोई मतलब कि जैसे कि फर्स्ट होने के लिए बहुत ही मतलब तैयार रहता है इंसान, बहुत कोशिश करता है, मुझे फर्स्ट पोजीशन ही चाहिए, ये जुनून रहता है हमेशा कि मुझे ये फर्स्ट पोजीशन ही चाहिए, या
ये मैं हासिल करके ही रहूंगा या रहूंगी। ये सोचते हो कि नहीं कि ऐसा कभी नहीं आया कभी लाइफ में, जो मिल जाए उसी में खुश। कौन कौन है जो मिल जाए उसी में खुश? कोई है इधर? प्राप्ति, Yes, sir. जो मिल जाए उसी में खुश। No, sir. तो फिर एक्सक्यूज मी सर, मेरा वीडियो ऑन है पर आपकी स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रही है। नहीं पता दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों। इसीलिए जैसे तुम्हारा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो अच्छे से तो नहीं है। मैं बार बार लॉग मतलब निकल रहा हूँ मीट से और फिर ज्वाइन कर रहा हूँ, फिर भी मुझे दिखाई नहीं दे रही। देखो अभी अभी आया। हाँ, एक तो तुम्हारा जो जियो कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हो, जियो या यस एयरटेल? सर। जियो। ऑब्वियसली जियो, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ जियो, क्योंकि जियो का नेटवर्क थोड़ा वीक रहता है। ठीक सर है, प्लीज कंसीडर कीजिए, अब तो मतलब मैं वाईफाई में हूँ फिर भी नहीं वो, मतलब काम नहीं नहीं हो रही। नहीं ये पता चल रहा है, नहीं ये मुझे पता चल रहा है कि किसका नेटवर्क कनेक्शन वीक है यहाँ पे। यहाँ पे जिसका भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका वो वीडियो ऑन नहीं है। यहाँ पे पता भी चल रहा है कि वीडियो ऑन है कि नहीं, ऑन है कि नहीं है वो भी पता चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग का जो भी है, जो भी क्लास कर लो, वॉट एवर मे बी द क्लास, नॉट ओनली माई क्लास, जो भी क्लास कर लो पहले से एटलीस्ट इंटरनेट कनेक्शन को अच्छे से रखो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए चाहिए, उसके लिए थोड़ा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक सर है, वाईफाई चल रहा है पर फिर भी मतलब वाईफाई से मतलब नहीं है, वाईफाई प्रोवाइडर कौन, दैट इज द थिंग। वाईफाई जो नेटवर्क प्रोवाइडर है वो मैटर करता है। वो एयरटेल है या जियो है, कि तुम्हारा जियो फाइबर है या फिर कुछ और। फाइबर से कनेक्ट करो, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, फाइबर से कनेक्ट करो, कोई कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। एयरटेल में सर करो, जियो फाइबर में ही है पर फिर भी दिखाई नहीं दे रही मतलब फाइबर में। हाँ सर, कभी कभी दिखाई तो नहीं दे रही। अभी जैसे आपके स्क्रीन में दिखाई दे रही है, मैं बहुत बार मतलब देख रही हूँ कि मुझे दिखाई नहीं दे रही है आपकी स्क्रीन में, और आप सोचेंगे कि मैं वीडियो नहीं ऑन की, आप मुझे अटेंडेंस नहीं देंगे, तो इसलिए नहीं मैं नहीं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। है, ऐसा नहीं है, वो पता चल रहा है कि कौन कौन। ठीक है, इसीलिए बीच में मैं जब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। यस सर। ही देखो, कृपा सागर, Yes, sir. तुम्हारा वीडियो ऑन है? Yes, sir. नेटवर्क इशू, फिर बोलेंगे। देखो अभी कैसे हुआ, आ गया कि नहीं कृपा Yes, सागर sir. का? Yes, sir. क्यों आया? जब क्वेश्चन पूछा मैं, ये मीट का ही एक मतलब ये है कि जब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कोई भी बोल रहा है कभी भी, मतलब उसके उसके पास जा रहा है क्वेश्चन या फिर कुछ भी, तो ऑटोमेटिकली वो वीडियो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं रैंडमली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है मतलब नहीं दिख रहा है मतलब उसको नहीं क्वेश्चन जा रहा है। क्वेश्चन जाएगा तो ऑटोमेटिकली उस टाइम पता चल जाएगा वो है कि नहीं। अगर नहीं है तो उस टाइम मैं उसको आउट कर दूँ। ठीक है, यस सर। अभी देखो, अभी भी 3-4 स्टूडेंट नहीं दिख रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास ये जो मीट का ही एक प्रॉब्लम है, गूगल मीट का ही प्रॉब्लम है, ये किसी और चीज का प्रॉब्लम नहीं है, गूगल मीट का। तो बहुत सारे इशू रहते हैं ऑनलाइन में। ऑनलाइन क्लास मतलब ऐसा नहीं है कि इशू नहीं रहेंगे, ऑनलाइन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम, तो उसको कवर करके ही हमें आगे जाना। ना कि मतलब क्लास कोई मतलब चीटिंग करना चाहे तो उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, कोई चीटिंग करना चाहते हो कोई नहीं रोक सकता, करेगा लेकिन उसका पनिशमेंट भी मिलेगा। एक बार पकड़ा गया मतलब सोच लो कि वो बार बार उसको ही मतलब ब्लेम करते रहे। एक बार कोई चोरी किया है, पकड़ा गया, मतलब बार बार कभी भी चोरी हुआ तो उसको ही ब्लेम करेंगे कि ये चोर है, ये किया होगा, है कि नहीं?
तो गलती एक बार करोगे तो बार बार उसको ही बोलेंगे। जितना भी, जैसे कि बोलते हैं एक बार गलत कर दिए तो उसको 100 अच्छे काम करोगे तब भी उसको गलती ही दिखेगा। तो इसीलिए कभी मतलब ये चीटिंग ये सब मत करना, क्योंकि 100 अच्छा काम एक बुरे काम इक्वल होता है। ठीक है, ओके। To come to the class, that is first is your high achievement motivation. हाई अचीवमेंट मोटिवेशन पता चल गया, मोटिवेटेड होना है। और फॉर एक्सलेंस, एक्सलेंस टॉप करने की चाहत होना है। ठीक है, टॉप करने के लिए हमेशा कोशिश करना है। देन सेकेंड वन इज योर, सेकेंड वन इज योर हाई पर्सनल ड्राइव एंड एनर्जी। तो अगर हाई पर्सनल ड्राइव एंड एनर्जी मीन्स क्या है? हाई पर्सनल ड्राइव एंड एनर्जी मीन्स Sir, inner motivation. इनर मोटिवेशन एंड कोई सपोज तुम्हारे पास कोई टास्क दिया नहीं, या फिर जैसे कि जिज्ञासा, ठीक है, तुम्हें Yes, sir. सपोज एग्जाम आया, क्या करती हो? कल एग्जाम है, क्या करोगे? Sir, revise. रिवाइज करोगे, कितना टाइम करोगे? Sir, to cover the whole syllabus. जितना पढ़ा गया उतना रिवीजन। कितना टाइम? यार हाँ, 2 to 3 hours। 2-3 आवर्स हो गए, खत्म। उतने में हो जाएगा पढ़ाई कल के लिए। Sir, it depends on the preparation. If I'm prepared thoroughly, then revision will take less time. आराधना, Yes, तुम क्या करोगी, कितना टाइम पढ़ोगी? whole night. बोल रही। तो देखो, ये पॉसिबली क्या हो रहा है, एक बोल रहा है 2-3 घंटा में खत्म हो जाए, एक दिन एक बोल रहा है कि नहीं होल नाइट पढ़ना पड़ेगा। नो डाउट दैट इज डिपेंड ऑन पीपल्स, बट you have to achieve good marks or good score in the exam. That's why you have to give for a longer period. कोई भी मतलब तुम्हें मार्क्स चाहिए, मतलब 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, 5 घंटा लगे, 10 घंटा लगे, तुम बैठ जाओगे नो डाउट, बिना सोचे। होगा कि नहीं? जरूरत है तुम्हें वो चीज, दैट यू नीड, दैट यू नीड। ओके, ठीक है। अगर अगर कोई चीज सपोज और भी है, ये तो फोर्सिबली हो गया। सपोज यहाँ पे कोई कोई सिंगर है, पेंटिंग या फिर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व उसको। एक्स्ट्रा क्वालिटी किसी के पास नहीं है यहाँ पे? यार गधे हो सब लोग, हाँ। या फिर पढ़ाई में इतना टैलेंटेड हो कि मतलब बाकी सब सोचना ही छोड़ देते हो, हाँ। किसका 95% से अबव है? पढ़ाई भी तो नहीं है उतना, तो फिर किसी और चीज में तो होगा ना। एक एक करके पूछना पड़ेगा सर। अर्पिता, Yes, sir. okay, tell me, in which extracurricular activity you are interested? Uh, uh, Sometimes singing, cooking, swimming. Swimming is main. कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट? Yes, sir. Every Which one? competition.
कॉम्पिटिशन। अभी कंपटीशन, तो उसमें क्या रहता है, जब कंपटीशन आता है तो एक माइंड में चलता है कि कैसे फर्स्ट आओ, है कि नहीं। यस सर। तो वहां पे मतलब जितना टाइम देना पड़े तो उतना टाइम तुम दे सकते हो कि यस। आज ये जितना है मतलब तुम्हें उतना टाइम देना पड़ेगा। तो 4 घंटा 5 घंटा ऐसा नहीं है, कोई लिमिट नहीं रहता है, बैठे रहते हो या फिर उसके लिए तैयारी करते रहते हो। ठीक है, यस पढ़ाई सर। करोगे तो बैठे रहोगे, कोई जिसका जैसा तैयारी होना चाहिए उसका वैसा तैयारी करोगे, प्रिपरेशन वैसा रहेगा। ठीक है, यस तो सर। वही उसके लिए जितना टाइम दे सकेंगे उतना टाइम दोगे। पर्सनल एनर्जी, एनर्जी चाहिए। हाँ, ड्राइव होना है, ड्राइव होना मीन्स उसकी तरफ तुम्हें मतलब इंटरेस्ट होना है। ठीक है, वही बोल रहे हैं। देन थर्ड वन इज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब किसके किसके पास है सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे। श्रीमा, चल। I have low self-confidence. नो सेल्फ कॉन्फिडेंस, Sir, low. लो, लो। प्रियंका, Yes, sir. do you have self confidence? Sir, it depends on situation. It depends on situation. That is the correct one. Depends on situation, depend on which one. सेल्फ कॉन्फिडेंस, अभी सपोज मैं बोलूंगा सौम्य, सौम्य। यस सर, यस सर। ओके, एक डांस करो तो अभी कर सकोगे। नो सर, कॉन्फिडेंस नहीं हो। हाँ, नो सर। सौम्य कॉन्फिडेंस नहीं हो। कौन कॉन्फिडेंट है, एक गाना गाओ। कौन, आदर्श, गाना गाओ। सर नहीं आता। नहीं आता, कॉन्फिडेंट नहीं हो। ना। Okay. तो फिर मनसा, Yes, sir. एक गाना गाओ तो। No, sir. कॉन्फिडेंस नहीं, हाँ, क्यों, No, sir. क्यों नहीं है कॉन्फिडेंस। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में कभी फेस नहीं किया। Yes, sir. Yes, sir. और क्या है कि कभी ऐसा मतलब सिंगिंग तुम्हारा पैशन भी नहीं हो सकता किसी का, मे बी। हाँ, या फिर हाँ, वो उसको आता नहीं होगा। ठीक है, या फिर बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, वो साई नेचर भी हो सकते हैं, कोई लोग क्या सोचेंगे वो भी बोल सकते हैं, और फियरनेस भी हो सकता है। तो कॉन्फिडेंस हम नहीं बोल सकते कि किसी के पास कॉन्फिडेंस है या नहीं, कॉन्फिडेंस किसमें है ये बोल सकते हैं। कॉन्फिडेंस किसमें है ये बोलो अभी, मनसा बोलो अभी, इन व्हिच वन यू हैव कॉन्फिडेंस। sir. Drawing. ड्राइंग। तो अभी मैं सपोज तुम्हें एक टास्क दूंगा कि ड्राइंग करो, किसी मतलब कौन सा वाला ड्राइंग करो करते हो तुम, कुछ कुछ भी, भी, sir. ह्यूमन बीइंग, फेशियल। Yes. Yes, sir. तो किसी एक का मतलब बोलूंगा कि 1 घंटे में करके दो, तो करके दो, दे पाओगी। नहीं सर, टाइम लगेगा। कितना, 2 घंटा। हाँ सर। ओके, तो 2 घंटा, ये कॉन्फिडेंट है कि मनसा भी कॉन्फिडेंट है कि वो ड्राइंग कर पाएगी, तो वो चीज में वो कॉन्फिडेंट है। लेकिन कोई दूसरा टास्क में दे रहा हूँ लेकिन वो
बोल रही है कि नहीं मैं कॉन्फिडेंट नहीं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस टू डू थिंग्स, तो यहाँ पे बिजनेस जो कर रहा है, मतलब हमारा जो ये एंटरप्रेन्योर का काम क्या है, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट लाना है। तो वो जो बिजनेस कर रहा है, जो भी बिजनेस टेकअप किया है, तो वो बिजनेस जब टेकअप करेगा तो वो बिजनेस में उसका कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ठीक है, वो चीज उसको आना चाहिए, अच्छे से कॉन्फिडेंट होना चाहिए, स्किल होना चाहिए उसको। ठीक है, जब प्रैक्टिस हो जाएगा, बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब वो बोलेगा कि नहीं, आई कैन डू दैट, आई कैन डू, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, दैट स्पिरिट विल कम। ओके, देन फोर्थ वन इज योर calculated risk taking. कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग मतलब हम कुछ भी रिस्क ले रहे हैं, लेकिन सोच समझ के रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, सोच समझ के हम रिस्क ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि हैपोथेटिकली हम कोई भी कुछ भी इन्वेस्ट कर लिया, जितना बोलो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लिया। तो भाई पहले सोचना पड़ेगा कि किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, है कि नहीं। ऐसे ही नॉर्मली मतलब हैपोथेटिकली इन्वेस्ट नहीं करते। वो किसका क्वालिटी है, ये एंटरप्रेन्योर। देन फिफ्थ वन इज योर टेकिंग इनिशिएटिव। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव अभी जैसे सपोज मैं बोलूं कि हाँ मैंने अभी विल टेक, विल डू फास्ट presentation, will give presentation here on topic mushroom, मशरूम कल्टीवेशन के ऊपर अभी कौन एक प्रेजेंटेशन देगा। रेज योर 5 मिनट्स। कोई नहीं देना चाहता। हाँ, इतना मतलब टैलेंट नहीं है कि 5 मिनट्स मशरूम के बारे में बोल सको। फैमिली, अपने फैमिली के बारे में कौन बोल सकता है अभी 5 मिनट्स। अभी छोटे बच्चे भी को भी पूछोगे तो बोल देगा, जैसे कि मूवी में दिखाया जाता है, एक चीट उठाएंगे उसके बारे में बोलो। हाँ, देखे हो कि नहीं मूवी में। 5 मिनट्स जो बोलते हैं, ये 5 मिनट बोलने के लिए तुम्हारे पास मतलब एनर्जी नहीं आ रहा है कि मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कोई नहीं, तो कोई भी इनिशिएटिव लेने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं है। समझ रहे हो, यहाँ पे ये क्वालिटी तुम्हारे पास है ही नहीं, किसी के पास नहीं है इधर। I think। प्रीति सिंघला, स्निग्धा, प्रीति सिंघला, Yes, sir. ये क्वालिटी तो फिर तुम्हारे पास है ही नहीं। हाँ, होपलैंड, यस सर। होपलैंड, यस सर। कोई होप है। हाँ, होप है तुम्हारे पास, नाम में होपलैंड है, लेकिन होप नहीं है, आशा किरण नहीं है। हाँ, बोलो, इनिशिएटिव कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये क्वालिटी रहना जरूरी है किसके पास, एंटरप्रेन्योर के पास, कि फर्स्ट वो टेक कर, मतलब उसको पहले वो आजमाए।
स्टार्टिंग उसी से हो, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं चाहता कि मतलब खुद से स्टार्टिंग हो, दूसरे क्या सोचेंगे ये सोचते रहते। क्या होगा इससे, अपना जो क्वालिटी है, स्पीकिंग क्वालिटी ये सब डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये सब डाउन हो जाएगा, फेयरनेस बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव लेने के लिए कोशिश करना है। देन लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट मीन्स लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट मीन्स कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तुरंत 1 घंटे बाद मुझे रिजल्ट चाहिए, ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता। एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वेस्ट कर रहे हो मतलब तुम्हें वेट करना पड़ेगा, हाँ, धैर्य रखना पड़ेगा, तब जाके यू कैन पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें अचीवमेंट मिलेगा। आज अगर पढ़ाई करोगे तो फ्यूचर तुम्हारा सिक्योर होगा, फ्यूचर में साइंटिस्ट बनोगे या फिर कुछ बहुत अच्छा जॉब करोगे। आज अगर हैवी हैवी हार्ड वर्क करोगे तब जाके तुम फ्यूचर में उसको तुम्हें मिलेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट, तुरंत मतलब इमीडिएट अचीवमेंट नहीं, जब तक तुम बार बार मतलब बहुत टाइम तक उसमें लगे रहोगे तब जाके उसको लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट। देन उसमें लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट का फॉर एग्जांपल जैसे कि देखना बैंक में या फिर किसी और जगह, मतलब वहां पे इंश्योरेंस कंपनी वाले भी बोलते हैं कि इन्वेस्ट कर दो, ना कि मतलब 1-2 दिन के लिए, कब तक, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल तक के लिए बोलते हैं इन्वेस्ट करो, तब जाके रिटर्न मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा, गारंटेड बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म। देन गोल सेटिंग। गोल सेटिंग, how many of you have goals, your goal have already, you have set your goal अभी तक? आदर्श, यस सर। कहाँ देख रहे हो? नहीं सर। कहाँ हो? सर बाहर से रह हूँ। क्यों, क्लास है पता नहीं है? सर क्वेश्चन बोलो। सर व्हाट इज द क्वेश्चन? सर you were discussing about goal setting. गोल सेटिंग क्या क्वेश्चन क्या था? आंसर बोलो। क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या बोलो? देखो ऐसा गलती मत करना कभी कि मतलब क्लास में हो, क्लास में क्या बोला जा रहा है वो पता नहीं, क्लास मत करो चलेगा, लेकिन एक बार पकड़ में आ गए मतलब सोच लेना कि वो तुम्हें बार बार उसको मतलब सुनना पड़ेगा, वो चीज तुम्हारे ऊपर इम्पैक्ट करेगा लाइफ टाइम के लिए, 1 साल 2 साल माइंड में क्या आ जाएगा कि ये लड़का ऐसा करता है, 2 बार 3 बार झूठ कोई बोलेगा, तीसरे बार सच भी बोलेगा तो उसको झूठ ही बोला जाए, होगा कि नहीं? तो वैसे ही हाँ सर। ऐसे कभी मत करना, क्लास नहीं करोगे चलेगा लेकिन ऐसा मत करना।
ठीक है, ये वन टाइप ऑफ चीटिंग है। तो बोलो तुम्हारा गोल क्या सेट किए हो? Scoring CGPA higher. एम क्या सेट किए हो? Sir, एम क्या सेट किए हो लाइफ का? sir banking. बैंकिंग चल रहा है, तैयारी चल रहा है? नहीं सर, स्टार्ट नहीं किया हूँ। तो गोल सेट करना है। उसके बाद क्या चाहिए? पहले गोल को आंखों के सामने रखना है, फिर सिस्टमेटिक प्लानिंग चाहिए। एट वन इज योर सिस्टमेटिक प्लानिंग। ठीक है, सिस्टमेटिक प्लानिंग चाहिए। आदर्श, क्या Yes सिस्टमेटिक sir. प्लानिंग है तुम्हारा? प्लानिंग क्या किए हो? Sir, starting for 1 hour, 2 hours in a week. अभी पूछ रहा हूँ बोल के किए हो, दिखाओ कभी रूटीन बना के दिखाना मुझे। ठीक है, Okay sir. अपना अपना हर कोई रूटीन बनाना कि लाइफ में, अगर जब तक रूटीन नहीं बनाओगे ना, उसको उसको फॉलो नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। रहने दो, वैसे ही लाइफ चलता रहेगा, कब टाइम खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए सिस्टमेटिक प्लानिंग चाहिए, और वो कौन करता है? एंटरप्रेन्योर। ये एक क्वालिटी है। ठीक है, देन नाइन्थ वन इज योर डीलिंग विथ फेल्योर और टेनेसिटी। टेनेसिटी, या इट इज टेलिंग दैट लाइफ में तो फेल होते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें, है कि नहीं? जितने बार गिरेंगे उतने बार उठने के लिए प्रयास करेंगे। एज वी ऑल नो दैट फेलियर इज द पाथ ऑफ सक्सेस, है कि नहीं? अगर कोई चीज देखना कि जो जितने बार मतलब फेल हुआ है वो उतना ज्यादा सीखा है। कोई चीज आसानी से मिल रहा है मतलब वो चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है, उसका वैल्यू पता नहीं चलेगा, है कि नहीं? जैसे कि पूछा जाता है, जैसे कि देखना एवार्ड एवार्ड फंक्शन कभी देखे हो? एवार्ड फंक्शन, उसमें जाके आपके सक्सेस का राज क्या है, आपको ये जो अचीवमेंट मिला उससे आपको कैसा लग रहा है? मास्टर मास्टर प्रीतम, परमिट। ओके बोलो, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारा मतलब एम जो है तुम्हारा सामने है, तुम्हें मिल रहा है, तो उस टाइम क्या फीलिंग्स आएगा, क्या बोलोगे? हम्म, क्या बड़ी शिद्दत से सहा था, वही वाला? हाँ, नहीं। सारे कायनात मिलके मुझे मिल गए, वो वाला ना डायलॉग? हाँ, सारे कायनात मिलके मिलाने में जुट गए, कि कुछ ऐसा ही है। किसको पता है? किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो कुछ तो याद होगा, किस मूवी का है? ओम शांति। ओम शांति। तो उसमें जब वो उसको ट्रॉफी मिलता है कि वो उस टाइम उसका फीलिंग्स क्या रहता है कि मुझे ये मिल गया, आखिर में मुझे ये हासिल हो ही गया। so many hurdles I have overcome, still I got that feelings, वो फीलिंग्स कब आएगा? डीलिंग विथ फेलियर। जब फेलियर के साथ डील करते रहोगे, फेलियर
हर टाइम फेल हो रहे हो, कोई मतलब नहीं है। तब तक जब तक फेल हो तब तक लोग बोलते रहेंगे, अरे कैसा पढ़ाई कर रहा है, कुछ नहीं आता है, ये नहीं आता है। जब मिल जाएगा कुछ बड़ा आदमी या कुछ बड़ा हासिल हो जाएगा तब क्या बोलेंगे, देखो वो मेरे पड़ोसी हैं। हाँ, वैसे बोलते हैं कि नहीं, उसके नाम से जाने जाते हैं। तो वही चीज चाहिए, क्या, डीलिंग विद फेलियर ऑफ टेनासिटी, लगे रहना है। देन 10th one is your success in terms of profit. Success in terms of profit. यहाँ पे मेन मोटिव रहता है किसी भी एंटरप्रेन्योर का, प्रॉफिट चाहिए भाई, प्रॉफिट। चाहे जो भी जितना भी तुम्हें कोशिश करना पड़े, मुझे प्रॉफिट ला के दो। इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी पैसा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 11th one is your information seeking behavior. Information seeking behavior. Information seeking behavior ये क्या है, जहां से भी कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, चलो पकड़ लो, दिमाग ही घुसा दो चीज। कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है कहीं से भी, कोई भी क्लास में बैठो लेकिन ज्ञान ले आओ। कोई भी यूनिफॉर्म पहन के बैठो, किसका है, कौन सा मूवी, हाँ, थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स। आमिर खान बोलेगा कि नहीं, कोई भी क्लास में जाके बैठ दो, बस यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है। हाँ, किसी को कोई नहीं पहचानेगा, कहीं कोई भी क्लास में बैठो लेकिन दिमाग में वो चीज भर के लाओ, ज्ञान, ठीक है। इंफॉर्मेशन, डेटा, दैट इंफॉर्मेशन सीकिंग, खोज, सीकिंग मीन्स खोज, वो चीज चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से मिल जाए उसको यूज करना सीखो, कलेक्ट करना सीखो, दैट बिहेवियर यू शुड हैव। Then 12th one is your persuasive leadership. Persuasive leadership means you have that leadership quality that other should follow you. Other बाकी सब लोग तुम्हें फॉलो करें, ऐसा क्वालिटी रहना है, ठीक है। परसुएसिव लीडरशिप होना। For example, here an entrepreneur follows a style of persuasive leadership which motivates the team members to put in their maximum effort. अपना जो टीम मेंबर रहेंगे, तुम्हारे जो टीम रहेंगे, उस टीम का तुम लीडर हो, और तुम जो बोल रहे हो उसको वो मतलब बिना बिना कुछ आर्ग्यू किए उसको फॉलो कर रहे हैं, परसुएसिव लीडरशिप, ठीक है। देन 12th one is your 12th one is your persuasive leadership. Then 13th one, use of resources. Use of resources means you have to use whatever the resources you have in a perfect manner, maximum output जो कि दो, ठीक है। एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, इकोनॉमिक्स में भी पढ़े होंगे। जितना भी है, सपोज घर में खाने के लिए तुम्हारे पास 2 दिन, जैसे कि फनी आया या फिर कुछ तितली आया, ठीक है, वैसा एक सिचुएशन आया जबकि तुम्हें खाने के लिए नहीं मिल रहा है 10 दिन 12 दिन, हाँ, तो वहां पे सपोज तुम्हारे घर में चावल दाल बचा हुआ है लेकिन बहुत कम है, तो क्या करते हो,
10 दिन के लिए कैसे उसको ऑप्टिमम यूज कर सके, 10 दिन कम कम खा के जैसे बचे रहे, जितना ज्यादा दिन हो सके उसको हम यूज कर पाए, वैसा सोचते हैं, या फिर वेस्ट कर देते? कभी नहीं, वेस्ट कभी नहीं करते। नीड है ना उस टाइम कि नहीं, मुझे 10 किलो चावल 10 दिन मुझे यूज करना है, तो 10 किलो चावल घर में फैमिली में यूज हो रहा है, तो ऑप्टिमम यूज करना है, थोड़ा सा भी फेंकना नहीं है, जैसे उतना ही कुकिंग करना है जितना की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद दैट इज योर ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। देन 14 one is your good networking. Good networking. Good networking means good relationship. Good relationship. ठीक है, गुड रिलेशनशिप, सबके साथ अच्छा बर्ताव करना है, अच्छा रिलेशन बनाना है, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, जब जरूरत पड़े वो तुम्हें हेल्प करे। ठीक है, जैसे कि मतलब developing a good network relationship with the person, agencies, organization connected with the enterprise. सबके साथ कोई भी एंटरप्राइज हो, कोई बिजनेस दूसरे मतलब एंटरप्रेन्योर हो, उसके साथ भी मतलब अच्छी तरह से रिलेशनशिप रखना है। Then come to the 15th one, that is ability to control. Ability to control means you have that capacity, you have that power to control others thinking. Entrepreneurs should have the ability to control the actions and activities of the people. कोई तुम्हारे पास ऐसा क्वालिटी होना है कि तुम किसी और को मोटिवेट कर सको और उसको कंट्रोल कर सको, अपने हिसाब से चलाना सिखा सको। तुम जो बोलोगे वो उसको मानेगा ही मानेगा, ये पावर होना है, एबिलिटी टू कंट्रोल। अपने टीम मेंबर को कोई भी तुम टास्क दोगे वो करेंगे ही करेंगे, तुम्हारे बात को डिबेट करके कुछ और नहीं करेंगे। They will do and obey everything whatever you will say, बिना सोचे समझे, बिना कुछ आर्ग्यू किए, बिना कुछ बोले, वो हमारे बॉस बोल रहे हैं चलो करो, बिना कुछ क्वेश्चन पूछो। ठीक है, तो ये क्वालिटी होना चाहिए कि तुम जो बोल रहे हो तुम्हारे मुंह से अगर निकल गया ये चीज करो, मतलब वो लोग करेंगे। यू कैन कंट्रोल देयर माउथ। देन 16 one, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी किसके किसके पास है? अनुपम, क्या क्रिएटिविटी? क्या नया चीज इस लॉकडाउन अगर आया, ये जो है अभी चल रहा है, जो भी घर में हो सब लोग, तो क्या क्रिएटिव थिंकिंग तुम्हारे पास है पढ़ाई के लिए? सर ड्राइंग। हाँ, पढ़ाई के लिए मैं बोल, क्रिएटिव आइडिया रिगार्डिंग कैसे पढ़ाई को मतलब नया तरीके से पढ़ाई करोगे, जैसे कि वो तुम्हें हेल्प करे गुड स्कोर करे। नहीं। स्टडी सेक्टर में किसी का? ठीक है, किसी और चीज में क्रिएटिव थिंकिंग? नहीं सर। एनीवन एल्स? प्राप्ति, तुम बोलो। सर स्टडीज में, स्टडीज या फिर कुछ और? सर लॉकडाउन में थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट की हूँ, मतलब स्टडीज के बारे में, और ड्राइंग करती हूँ। विश्वजिता? यस सर। क्या करोगी? क्रिएटिव थिंकिंग कुछ ऐसा कुछ है?
So I don't know how to cook, so I'm trying to learn it. Okay, creative thinking. Then सौम्य तुम क्या करोगे? So I'm writing stories and essays. ओके, तो कुछ यहाँ पे हमारा डिस्कशन टॉपिक क्या है? एंटरप्रेन्योर का। तो एंटरप्रेन्योर क्या सोचेगा? कुछ ऐसा कुछ करूं जैसे कि ज्यादा प्रॉफिट आए, ज्यादा कस्टमर मुझे मिले, ठीक है, ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा कस्टमर, ये ऐसा क्रिएटिव थिंकिंग होना है। नया टेक्निक यूज करूं, रिसर्च करूं, मार्केट रिसर्च करूं, मार्केट सर्वे, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में लाने से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो अभी जैसे कि मास्क का मतलब बहुत ज्यादा मार्केटिंग चल रहा है, मास्क, सैनिटाइजर। अगर लो प्राइस में तुम अगर मास्क दे सकोगे तो ऑब्वियसली योर मार्केट विल बी प्रॉफिटेबल। ओके, प्रॉफिटेबल मार्केटिंग कर सकते हो, मार्केट, ये जो बिजनेस है ये अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा। तो ऐसा प्रोडक्ट चूज करना है जो कि मतलब सिचुएशन के हिसाब से बेस्ड हो, ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग होना है। समथिंग दैट इज, ऐसा मास्क बनाओ जिसकी वो मतलब लगाने के बाद भी मतलब तुम्हारा ये कुछ ऑकवर्ड फील ना हो, मतलब सफोकेशन ना हो, ऐसा मास्क बनाना चाहिए। ऐसा क्रिएटिव थिंकिंग कुछ करना चाहिए जो कि मतलब सबके लिए मतलब वो नया हो, क्रिएटिव हो, अच्छा लगे, यूज करने में अच्छा लगे, उसको वो अपने लाइफ में अप्लाई करें, ऐसा होना क्रिएटिविटी। देन 17 विजन। विजन क्या है? दूरदर्शी। दूरदर्शी पता है? बाबा लोग, हाँ, मुनि ऋषि, हाँ, ऋषि लोग, ऋषि मुनि जो भी रहते थे पहले, दूरदर्शी थे। अभी भी देखोगे कोई के हाथ दिखाने चले जाते हैं। हमारा फ्यूचर क्या है? हाथ देखे बताओ, बोलते हैं कि नहीं? हाँ, माथे पे क्या लिखा हुआ है वो भी देख के पढ़ के बताते हैं कि नहीं? तो ये सब चीज दूरदर्शी। दूरदर्शी, ये जो पावर किसके पास रहता है? जो अच्छे से प्लानिंग करता है। अभी तुम्हारे सबके अंदर वो सिक्स सेंस है, फ्यूचर देख सकते हैं। सब कोई अपना अपना फ्यूचर देख सकते हो। अभी के सिचुएशन में जो तुम कर रहे हो, जैसा रेगुलर लाइफ जी रहे हो, वैसे ही लाइफ जियोगे तो क्या होगा फ्यूचर में, सबको पता है। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट वन, वो डार्क है या लाइटनिंग है, वो सब पता है। या फिर मैं गलत बोल रहा हूँ? किसी को पता नहीं है अभी तक फ्यूचर में क्या होगा, किसी को पता नहीं है। जो जैसा करेगा, जैसा पढ़ाई करेगा, जैसा मेहनत करेगा, उसी तरह उसका सेट है। किसी किसी का एक्सेप्शन हो सकता है भाई, किसी का लक बाय लक मतलब उसको मिल जाए कुछ चीज, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा सबको पता है, क्योंकि तुम लोग ही उसको डिसाइड करते हो, कर्म ही डिसाइड करता है। तो विजन है, जैसे कि एवेंजर्स का विजन, पता है? एवेंजर्स का विजन देखियो, विजन को देखियो एवेंजर्स का, नहीं देखे? अरे वहां यहाँ पे उसके यहाँ पे लाल वाला जो एवेंजर रहता है, हाँ, रेड ड्रेस कोट सूट में, यहाँ पे एक मणि रहता है, स्टोन रहता है, नहीं पता? तो वहां पे वो पता है। तीसरी आंख जैसे, हाँ, उसका, तो वो उसी तरह तुम्हारे अंदर भी एक मतलब यहाँ पे एक तीसरी आंख है। कहाँ पे? माइंड में। ये सिर मतलब माइंड,
माइंड में तुम्हारे एक तीसरी आंख है जो कि तुम दूरदर्शी हो। वो तुम दूर की सोच कर सकते हो। और कैसे इमेज आएगा? आंख बंद करोगे तो इमेज आएगा, ना कि आंख खोल के रखोगे। ठीक है, डे ड्रीमिंग नहीं है। आंख बंद करोगे और सोचोगे मैं ये प्लानिंग करेंगे तो जरूर वो मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर 18 नंबर 17 नंबर विजन का देन वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी मीन्स कोई भी सिचुएशन आए, whatever may be the situation, whatever may be the problem, you can handle that one. You can handle that one. Whatever may be the problem in your life come, whatever, any type of adverse situation come in your life, you can handle that situation properly. Okay, दूर भागना नहीं है। लाइफ तो भरा पड़ा है प्रॉब्लम्स में, हाँ है कि नहीं? किसी का लाइफ इतना सिंपल तो नहीं होगा कि लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। अगर प्रॉब्लम ना हो तो मतलब पता भी नहीं चलेगा कि खुशी क्या है, लाइफ हैप्पीनेस क्या है। ठीक है, अगर बुरा है तो अच्छाई का पता चलता है, दुख है तो सुख का पता चलता है। कंप्लीमेंट्री, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ द लाइफ ऑल्सो। आज खुश हो कल दुख होगा, कल दुख हो परसों खुशी मिलेगा, होगा कि नहीं? वही नियम है लाइफ का, वही नियम है। कोई भी चीज लाइफ टाइम के लिए नहीं रह जाता। ठीक है, देन 19th one is your passion. Passion means लगाव, उसकी तरफ अट्रैक्ट होना है, इंटरेस्ट होना है। अगर काम तुम्हारा, जॉब तुम्हारा पैशन बन गया तो क्या होगा? ऑब्वियसली you will achieve that one, you will get success, you will be happy in your life. जैसे कि फरहान को पता है, फरहान 3 इडियट, उसमें क्या बोलता है? उसके मम्मी पापा जो उसको इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए भेजते हैं, लेकिन उसमें मन नहीं करता है, तो आमिर खान क्या बोलेगा? देख, कोई मूवी देखा है कि नहीं देखा है, वो भी डाउट है मुझे। 3 इडियट देखे हो सब लोग? हाँ, तो उसमें वो बोलता है कि जो मन करे वही करो, जो तुम जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, जो चीज तुम कर सकोगे अच्छी तरह से वही करो। हाँ, तो वो चीज, वो क्वालिटी तुम्हारे पास रहना है, पैशन रहना है। अगर किसी को मैं बोलूं कि नहीं तुम्हारा जो हॉबी है उसको अपना लाइफ का मतलब करियर बना लो, तो क्या होगा? हॉबी मतलब क्या? जिसमें तुम्हारे इंटरेस्ट, अगर उसमें तुम्हारा अगर करियर बन जाए तो काम काम जैसा नहीं लगेगा। ठीक है, हैवी वर्कलोड नहीं लगेगा। जिसको खेलने कूदने में पसंद है उसको स्पोर्ट्स का मतलब कुछ अच्छा मतलब जॉब दिला दो, वो खेलता रहेगा, उसके लिए काम नहीं है वो। किसी को जिम जाना पसंद है, जिम ट्रेनर बना दो, उसको काम जैसा नहीं लगेगा। किसको पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, उसको बुक पकड़ा दो, प्रोफेशनल लाइन में जाने के लिए बोल दो, टीचर लाइन में जाए, वो सही रहेगा। वैसे ही जिसका हॉबी, जिसमें पैशन हो, जिसमें अच्छा लगे, इंटरेस्ट आए, उसमें वही उसमें करियर बना। तो एंटरप्रेन्योर बोल रहे हैं कि नहीं, उसमें पैशन होना है, मतलब इंटरेस्ट रहना है वही चीज में। जो भी चीज प्रोडक्ट लाया है, जो भी बिजनेस कर रहा है, उसमें वो अच्छा लगे, उसमें करने में मजा आए करने में। तो वही वाला तुम्हारा मतलब माइंड में रहना कि इतना इंटरेस्ट
रहेगा तब जाके मैं इसमें अच्छे तरह से काम कर पाऊंगा। देन लास्ट वन इज योर 20 नंबर, willingness to work hard, ठीक है, willingness to work। यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा willingness होना है कि कोई भी हार्ड वर्क करने के लिए मतलब तुम तैयार हो जाओ, विल पावर इतना स्ट्रांग हो जाए कि कोई भी मतलब ऐसा काम दिया जाए जो कि मतलब डिफिकल्ट हो वो भी तुम्हें इजीली यू कैन डू दैट।